شادی کا کچن महके जहां گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے. ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے. پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر. بھارت میں بدعنوانی، ذات پات اور فرقہ واریت کے لیے کوئی جگہ نہیں. وزیر اعظم نریندر مودی. کہا ہے ملک مستقبل قریب میں دنیا کی چوٹی کی 3 معیشتوں میں سے ایک ہوگا. فوجی سربراہ جنرل منوج پانڈے نے راجوری سیکٹر میں LOC سے متصل اگلے علاقوں میں سیکیورٹی اور کارروائی سے متعلق تیاریوں کا لیا جائزہ. پرسار بھارتی عوامی نشریاتی ادارہ ہونے کے ناطے ایک نظیر قائم کرنا چاہتا ہے. ممبر فائنانس. اور اسرو نے ملک کے پہلے شمسی مشن آدتیہ L1 کو بالائی مدار میں پہنچانے کی پہلی کارروائی کامیابی کے ساتھ دی انجام. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سال 2047 تک بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. وزیر اعظم نے نئی دلی میں G20 سربراہ اجلاس سے قبل ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو کے دوران یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ بھارت میں بدعنوانی، ذات پات اور فرقہ واریت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ G20 میں بھارت کے بیانات اور نظریے کو دنیا مستقبل کے خاکے کے طور پر دیکھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں G20 کے وزارتی فیصلے دنیا کے مستقبل کے لیے اہمیت کے حامل ثابت ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے نظریات محض خیالات نہیں، در حقیقت بھارت کی G20 کی صدارت سے کئی مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرۂ ارض پر مستقبل کا کوئی بھی منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ سبھی کی آواز نہ سنی جائے. انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں بھارت دنیا کی چوٹی کے 3 معیشتوں میں سے ایک ہوگا. چھوٹی G20 شیرپا میٹنگ آج سے ہریانہ کے نوح ضلع میں ہو رہی ہے، جو 7 ستمبر تک جاری رہے گی. اس سلسلے میں ہریانہ سرکار نے سرحال سرحد سے کھیت کی دوالا ٹول پلازا رامپور فلائی اوور تک کے راستے کو خاص طور سے سجایا ہے. اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں G20 ممبر ملکوں کے علاوہ مدعو کیے گئے ملکوں کے شیرپاز اور دیگر وفود شرکت کر رہے ہیں. فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے کل راجوری سیکٹر میں کنٹرول لائن سے متصل اگلے علاقوں میں سیکیورٹی اور کارروائی سے متعلق تیاریوں کا جائزہ لیا. جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف اور شمالی کمان کے لیفٹیننٹ جنرل اوپندر دیویدی نے فوج کے دیگر اعلیٰ افسران کے ہمراہ فوجی سربراہ کو پاکستان سے متصل کنٹرول لائن کی صورتحال اور کارروائی سے متعلق تیاریوں کے علاوہ انتہا پسندوں کی جانب سے دراندازی کی کوششوں کے بارے میں جانکاری دی. انہیں بتایا گیا کہ دراندازی کی بیشتر کوششوں کو مستعد فوجوں نے ناکام بنا دیا. فوج کے سربراہ نے کنٹرول لائن پر فوجوں کی مؤثر تعیناتی اور تیاریوں کی ستائش کی. کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر غلام احمد بیر نے کہا کہ 2024 کے عام انتخابات اور مختلف ریاستوں میں آنے والے اسمبلی چناؤ میں انڈیا الائنس کامیابی حاصل کرے گا. ناگم کوکرناگ میں پارٹی ورکروں اور لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ اب منافرت اور استحصال پر مبنی تقسیم کرنے والی اور نفرت پھیلانے والی سیاست کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ NDA سرکار کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا الائنس سے وہ جیت نہیں پائے گی. انہوں نے کہا کہ الائنس ملک اور ملکی عوام کی بہتری، خوشحالی اور تعمیر و ترقی کو یقینی بنائے گا. انہوں نے کہا کہ موجودہ مرکزی سرکار لوگوں کا اصل معاملہ سے توجہ ہٹا کر انہیں غیر ضروری مسائل اور مشکلات میں الجھا رہی ہے. BJP جموں کشمیر نے آج شہر کے خانیار اور باغات علاقوں میں عوامی رابطہ پروگراموں کا اہتمام کیا. BJP کے سری نگر ضلع صدر اشوک بٹ کی صدارت میں منعقدہ ان پروگراموں کے دوران آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور ان تیاریوں میں تیزی لانے کی اہمیت اجاگر کی گئی. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے ترقی سے متعلق حکمت عملی اور نظریے کے علاوہ مرکزی سرکار کی طرف سے عملائی جا رہی فلاح و بہبود کی مختلف اسکیموں کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی. پروگرام کے دوران BJP ضلع صدر نے کہا کہ BJP جس انداز سے ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس دیگر جماعتیں ہمیشہ سے ہی اپنے مفادات کو ترجیح دیتی آئی ہیں.
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर लीडर को एजेंसी का टैग दिया है और ये ऐसी पार्टी है जो अपनी गलती का इल्जाम दूसरों पर आयद करती है। त्रिगाम कुपवाड़ा में पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहिद जमात है जो शुमाली कश्मीर में अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है। उन्होंने वर्करों से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत से मजबूतर बनाने और आने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कुछ जमातें अभी भी लोगों को खोखले नारों और झूठे वादों से गुमराह करने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों की आवाज बनकर अपना फर्ज अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज वारपोरा सोपोर में एक अवामी रैली का एहतमाम किया। रैली से खिताब करते हुए पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद की मुतमन्नी है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें अभी भी लोगों को खोखले वादों और झूठे नारों के बहकावे में लाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसके बरअक्स अपनी पार्टी लोगों के साथ वही वादे कर रही है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन की सदारत में पार्टी वर्करों की मीटिंग आज पार्टी हेडक्वार्टर राजबाग श्रीनगर में मुनाकिद हुई। मीटिंग के बाद पार्टी से वाबस्ता मेंबर पार्लियामेंट चंदेश्वर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है कि बगैर किसी खौफ खतरे के अपनी उमंगें और जज्बात जाहिर करें। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों और जनता दल यूनाइटेड को 2024 के आम इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए और इन इंतखाबात में सही उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की सही करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि उनकी पार्टी इब्तिदा से ही अवाम की खिदमत करती आई है और इस पार्टी का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। जनूबी कश्मीर के पार्टी कारकुनों से खिताब करते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और मरकज़ के दरमियान जो रिश्ता उस वक्त के हुक्मरान महाराजा हरी सिंह ने जोड़ा था वो सिर्फ 3 शराइत पर मबनी था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए कानूनी और आईनी तगदो कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर को जाज़िब नज़र और सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बनाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से इन दिनों शहर खास में पुराने हबकदल को ओल्ड जीरो ब्रिज की तर्ज पर जाज़िब नज़र बनाने और इसे नई तरह देने का काम शद्दोमद से जारी है। यह अमल अगले 2 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा और इस पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पुल के गिरदोनवा में रहने वाले लोगों और दुकानदारों ने सरकार के इस कदम को काबिल सराहना करार दिया है और कहा कि यह पुल अब मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी दिलचस्पी का मरकज बनेगा। तहम उन्होंने इंतजामिया से यहाँ माकूल पार्किंग सहूलियात दस्तयाब रखने का मुतालबा किया है। रिनोवेशन से यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो उनको डाउनटाउन शहर श्रीनगर के जो अंदरूनी इलाके हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। मैं बासान यह गो सारी खुद असल सानि खतर इंशाल्लाह फरमा करे अल्लाह ताला अमि सैनिस मार्केट्स अमि सत रुतुय यह तुल गवर्नमेंटन वारिया असल कदम यह सा बनाओ हेरिटेज ये सा लागो थोड़ा पोंस अमि सत वारिया असल गछि तह सा रोज मार्केट पोजिशन तो अमि सत वारिया असल तुल गवर्नमेंटन यह कदम यह तुल बड़ बेहतरीन कदम तुलन वारिया बेहतरीन कदम कि अस आव वन अमि सत गछि तोह फायदे या तोह तो तथ उम्मीद मज इंशाल्लाह रहमान यह मत तम सह फायदे क्या डैमेज कदल गोमुत। गवर्नमेंट से सिर्फ बस एक इल्तिजा है कि थोड़ा सा पार्किंग का भी यहाँ पे ध्यान रखें, कहीं पार्किंग इनको दे, क्योंकि कल को टूरिस्ट गाड़ियाँ आएंगी या और कोई आएंगे, लोकल टूरिस्ट आएंगे तो वो हमारी दुकानों के सामने गाड़ियाँ रखेंगे, उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से करें कि आपने अच्छा स्टेप उठाया, हम भी आपके साथ हैं, इस स्टेप के साथ हैं हम। पार्किंग का होना चाहिए कुछ ना कुछ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने संडे फॉर श्रीनगर पहल के जरिए आज शहर श्रीनगर के वीर छतबल, सीमेंट कदल और कुरसू राजबाग से फुट ब्रिज तक खुसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। कॉरपोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की निगरानी में मुनाकिदा इस मुहिम के दौरान जोनल सैनिटेशन और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मुहिम के दौरान इन इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जमा कूड़ा करकट हटाया गया। कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा कि शहर श्रीनगर में पूरी तरह सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए वो हर सतह पर मुतहरिक है। आकाशवाणी श्रीनगर ने फौज के इश्तराक से गुरेज के शीना कल्चरल सेंटर में एक
दर्द शीना कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी फनकारों ने शिरकत की। इस दौरान शीना जुबान में एक मुशायरे का अहतमाम भी किया गया, जिस दौरान कई सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर कई फनकारों की हौसला अफजाई भी की गई। आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मकसूद अहमद ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि आकाशवाणी की तरफ से मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान गुज़श्ता माह की 22 तारीख को द्रास के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से रवाना की गई कार रैली भी वापस गुरेज पहुंची। काबिल जिक्र है कि तकरीबन 7 दहाइयों बाद गुरेज से द्रास के लिए काबुल गली के रास्ते इस रैली का एहतमाम किया गया। त्राल के नवदल इलाके में आज सालाना नवदल तीर्थ यात्रा पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाली हिंदू बिरादरी ने शिरकत की। इस पूजा का एहतमाम हर बर्स सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होने के बाद किया जाता है। इस सिलसिले में आज यहाँ हवन और भजन का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी मुसलमानों ने पंडित और हिंदू बिरादरी का वालिहाना इस्तकबाल किया और तैयारियों में पेश रहे। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने नौदल यात्रा पर पंडित और हिंदू बिरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश की। बटमालू श्रीनगर में दौरान शब आग की एक वारदात में 2 होटल और 2 दुकान खाकिस्तर हो गए हैं। तमाम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने नहीं दिया। बताया जाता कि आग एक मेवा दुकान से नमूदार हुई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। गुलमर्ग के अफरोट इलाके में आज सिक्की फौजी का मुजस्समा मुल्क के उन बहादुर फौजियों जो बर्फीली चोटियों पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं के लिए वक्फ किया गया। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के कमांडेंट मेजर जनरल आर.के. सिंह ने इस मुजस्समे को वक्फ करने की रस्म अंजाम दी। उन्होंने कहा कि मुजस्समा गुलमर्ग आने वाले सयाहों के लिए दिलचस्पी का एक और मरकज होगा। उन्होंने कहा कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग 1948 से वजूद में आने के बाद हर बर्स फौज, CRPF और BSF वगैरह के 1400 से ज्यादा एहलकारों को तरबियत फराहम करता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रसार भारती जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक जायजा इजलास की सदारत करते हुए प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस DPS नेगी ने कहा कि प्रसार भारती अवामी नशरियाती इदारा होने के नाते एक नज़ीर कायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूर दराज माव नवाजियत से मुतासर हिस्सों और पहाड़ी इलाकों तक आकाशवाणी की FM नशरिए को वुसअत देने की कोशिशें जारी हैं। अपने एक रोज़ा छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नेगी ने रायपुर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अफसरान के साथ मीटिंग की और जारी प्रोजेक्टों का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने बेंगलुरु के ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए मुल्क के पहली शमसी मिशन आदित्य L1 का जमीन से पहले तकनीकी तब्दीली का मरहला कामयाबी के साथ अंजाम दिया। एक ट्वीट में भारतीय खलाई एजेंसी ने कहा कि इसरो की ट्रैकिंग और कमांड ट्रैक वर्क ने आज सुबह स्पेस क्राफ्ट को नए मदार में पहुंचा दिया। ये सैटेलाइट ठीक ढंग से खुश उसलूबी के साथ काम कर रहा है और इस तरह की अगली कार्रवाई मंगल के रोज दोपहर 3 बजे के आसपास अंजाम दी जाएगी। जिला पुलिस पुलवामा के एहतमाम से मुनाकिदा T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज ग्रीन पार्क स्टेडियम ललहार में ब्लू कैप्स ललहार और कश्मीर स्प्रेंटस किसरगाम के दरमियान खेला गया, जिसमें कश्मीर स्प्रेंटस किसरगाम ने जीत हासिल की। इख्तितामी तकरीब में DIG साउथ कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने मेहमान खुसूसी के तौर शिरकत की, जबकि 5 सेक्टर ब्रिगेडियर अमित त्योतिया के अलावा SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ और दीगर पुलिस अफसरान और लोगों की अच्छी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थे। आखिर में खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में एजाज़ात तकसीम किए गए। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने मर्दों का हॉकी 5S एशिया कप जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की कामयाबी मुल्क के खिलाड़ियों के पुख्ता अज़्म और लगन का एक सबूत है। वज़ीर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अगले साल ओमान में होने वाली हॉकी 5S कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। वाज़ेह है कि भारत ने कल ओमान के शहर सलाला में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराकर मर्दों का पहला हॉकी 5S एशिया कप जीत लिया।
मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है